Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1, exercise 1.1. Find order of the following matrices: A with entries 2, 3, -5, 6. तो ऑर्डर का फार्मूला रिमाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, which is equal to number of rows in a matrix by number of columns in a matrix. तो हमें नंबर ऑफ़ रोज़ का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमें पता हों तो हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए, नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए, कितनी रोज़ हैं जी? 1, 2। नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी जी? 1, 2। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए, फार्मूला लिख लें तो बेहतर है। नंबर ऑफ़ रोज़ multiplied by number of columns. Number of rows 2 by number of column 2. तो ऑर्डर ए का आ गया 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी, 2, 0, 3, 5। ये बिल्कुल जो पहला मैट्रिक्स था उसी की तरह है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ rows in B, number of rows 1, 2, number of column in B also 2. So therefore order of B, number of rows by number of columns, so 2 cross 2. Next C, which is 2, 4. So C, number of rows in C. How many rows? Only one row. Number of columns in C, 1, 2. So order of C, number of rows by number of columns, so 1 cross 2. Next T, 4, 0, 6. So first of all we will write number of rows in D. In D, how many rows? 1, 2, 3. Number of columns in D, so 1 column in D. So therefore order of C,
number of rows by number of column, 3 cross 1. E A D B E C F. Number of rows in E. In E. How many rows? 1 2 3. तो रोज़ की तादाद ई में 3 है. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इन ई 1 2. So therefore order of E, number of rows by number of column, 3 cross 2. Next F. So number of rows in F 1, number of columns in F1. So therefore order of F 1 cross 1. G 1 2 3, 1 2 3. सॉरी ये गलत लिखा है. 2 3 0. 2 3 0. 1 2 3 and 4 2 4 5. Number of rows in G. How many rows? 1 2 3 rows. Number of columns in G 1 2 3. So therefore order of G. Three by 3. Last H. Two 3 4 and 1 0 6. Number of rows in H. How many rows? 1 2. Number of columns in H. So the number of rows 2 है, not 3. Number of rows 2 and number of columns 1 2 3. So therefore order of H 2 by 3. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं.
Equal matrices satisfies two conditions. Number one, they have the same order, and secondly, the corresponding elements are equal. So first of all, we will write the orders of each matrix. So A has order number of row 1 cross 1. Matrix B have 1 row and 2 column. C 5 minus 3, 1 element, not 2 element. So 1 row or 1 column. D have 1 row and 2 column, 1 and 2. Similarly, E number of rows 2, number of column 2. F 2 rows 1 column. G 3 minus 1 2, 3 plus 3 6. So 2 rows and 1 column. H has 2 rows, 2 column. I has 1 row and 1 row, not 2 row, 1 row and 2 columns. J has 2 row and 2 column. तो अब हमने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका आर्डर सेम है। तो 1 क्रॉस 1 के साथ A एंड C हैं, इसके अलावा किसी और का आर्डर 1 क्रॉस 1 नहीं है। तो अब हम इनके एलिमेंट्स भी चेक करते हैं। अगर एलिमेंट्स भी इक्वल हुए तो A एंड C आर इक्वल मैट्रिक्स। तो A में जो एलिमेंट है, एंट्री है, वो 3 है एंड C में 5 minus 2 3 है। सो A एंड C आर इक्वल। A इक्वल्स टू C। नेक्स्ट मूव करते हैं। B का आर्डर जी 1 क्रॉस 2। अब हम देखते हैं किसी और मैट्रिक्स का आर्डर 1 क्रॉस 2 है। 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। सो B, D एंड I हैव द सेम आर्डर। अब हम चेक करते हैं कि इनमें जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम है। 3 5 5 3। तो ये B और D की एंट्री सेम नहीं है। I 3 और 3 प्लस 2 5, 3 5 3 5। B I are equal because they have same order and same elements. So B is equal to I. नेक्स्ट 1 क्रॉस 2 ये हो चुका है। 2 क्रॉस 2, तो E का आर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसके अलावा H का आर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसके अलावा J का आर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो दे हैव द सेम आर्डर। अब हम एंट्री चेक करते हैं, ये भी सेम है। 4 0 6 2, 4 0 6 2। सो E एंड H आर इक्वल, 4 0 6 2। और J की भी एंट्रीज इन दोनों के साथ सेम है। सो ये तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। F E H J, E H J, E H J, दे आर ऑल इक्वल। इसके अलावा हमारे पास 2 क्रॉस 1 वाला F है और G है। तो दे हैव द सेम आर्डर। अब हम चेक करते हैं कि इनके एलिमेंट्स भी सेम है। तो 3 minus 1 2 और F में भी 2 है और 3 plus 3 6। तो दे हैव द सेम आर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो F एंड G आर इक्वल। F एंड G आर इक्वल। तो यही हमने मालूम करना था कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। बस इसके लिए आपको सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिनका आर्डर सेम हो और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड A B C and D which satisfies the metric equation A plus C
a plus 2b, c minus 1 and 4d minus 6 equals to 0 minus 7, 3 and 2d। तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है, तो जब मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनके आर्डर भी सेम होते हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम होते हैं। यानी कि हम इन एलिमेंट्स को बराबर लेंगे क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है। तो ए प्लस सी, फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट साइड से फर्स्ट, राइट साइड से फर्स्ट की इक्वल होगा। सो ए प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस 2b equals to minus 7, c minus 1 equal to 3 और लास्टली 4d minus 6 equals to 2d। तो इनको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड लास्टली 4। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर -1 को अगर लेफ़्ट से राइट पे ले जाएं तो 3 + 1 4 हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, c minus 1 equals to 4, so c minus 1 equals to 3, so 3 plus 1, c equals to 4। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, c equals to 4। अब ये c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हम a इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो पुट c equals to -4 in 1, तो a + 4, c की जगह 4 पुट कर दिए। अब यही 4 लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो a equals to -4। ये सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई, a equals to -4। अब अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो b की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो पुट a equals to -4, पुट a equals to -4 in equation number 2 which is a plus 2b। तो a की जगह -4 आ जाएगा, प्लस 2b equals to -7। तो 4 को लेफ़्ट से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7 + 4। तो -7 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करें तो अलामत जो है वो बिग डिजिट की आएगी। अब दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड करें क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को एलिमिनेट करना है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, b हमारा आ जाएगा -3/2। और लास्टली क्वेश्चन नंबर 4 में हमने d फाइंड करना है, तो 4d - 6 एंड इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज 4d - 6 equals to 2d। तो d वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आएँ, 4d - 2d, और 6 को आप राइट साइड पे ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा। तो 4d - 2d ये आ जाएगा 2d विच इज़ इक्वल टू 6। राइट लेफ़्ट दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 के साथ 2 कैंसिल, d हमारा आ जाएगा 2 1 2 3 द 6। तो ये हमने तीनों चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ए बी सी एंड डी। उम्मीद है जी आपको ये मशक समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।